Tell me. And how to compile it and run it. Okay. So I think yesterday we had also again talked about the basics about C program. And then we had discussed this PPT, right? Structure of C program. We had discussed about documentation where we can add comments in our program. Then link section in the global area, we can put some preprocessor directives, right? जैसे hash include stdio.h और फिर हमने string.h, stdlib and math.h के बारे में देखा. Then there can be some other macros also like hash define. Then we can also define few of the variables in global area. Then we had discussed about the main function. तो यहाँ पर earlier we were desktop पे तो new नाम की file थी. Right, just 1 minute. So I think yesterday, up till yesterday, we had discussed this program, right? That I had taken two integers, x is equal to 10 and y is equal to 20, and we had added those integers and we had put the result of the addition in z integer, and then we had printed the value of z. ठीक है? Yes. तो आपके ये जो पीपीटी है इसमें यहाँ पर बताया गया है that main function contains two parts. One is the declaration part and another is executable part, right? So what are those parts in a program? If I'm talking about this program, then this portion will be the declaration part. Okay. So this is the declaration part and this will be the executable part where you are declaring variables. यहाँ पर जो मेरे पास में x is equal to 10, y is equal to 20, I am here, it is called declaration part. I am declaring that these variables x and y are of integer type. ठीक है? तो ये हम कह देते हैं कि मेन जो फंक्शन है that is divided into two parts. One is declaration part and another is executable part. Means these lines will be the executable lines that will be giving some result. Okay. So these two parts must be written in between the opening and closing brace that we have already done yesterday. We will not discuss it now. Fine. So we had discussed about example of C program. Okay. So यहाँ जब हमारे पास में हमने क्या देखा, पहले कमेंट्स इसके आगे ऐड कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और फिर यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास में लिंकिंग सेक्शन होता है, तो यहाँ पर हम अपनी लाइब्रेरीज को ऐड कर सकते हैं. दूसरा हम यहाँ पर मैक्रोज दे सकते हैं, राइट? उसके बाद मेन फंक्शन में देखा डेक्लेरेशन पार्ट एंड एक्जीक्यूशन पार्ट. अब यहाँ जब मेन फंक्शन खत्म हो गया है, इसके बाद का जो ये वाला एरिया है जो नीचे यहाँ आई एम putting the cursor here, this whole area, here also we can put some code. Okay. हम फर्दर जैसे भी हम ये सी प्रोग्रामिंग आगे पढ़ेंगे, जैसे ये दिस सिलेबस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग दैट वी कैन मेक आवर ओन फंक्शंस हियर, और फिर हम उस फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन देते हैं और कैसे उस फंक्शन को हम यहाँ नया एक अपने हिसाब से एक फंक्शन बना सकते हैं, उसका अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. Right. So after the main function, like it ends here. So after that also we can have some lines of code that can be written below the main function, right? ऊपर भी हो सकता है, ऊपर का हमने डिस्कस किया है, and it can also be entered below the main function. ठीक है? तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास में इस पीपीटी में कि यहाँ पर that all the user defined functions are defined in this section of the program, and user can define their own functions. जब हम अपने खुद से functions, जैसे कल हमने syllabus को discuss किया तो उसमें हमने functions के बारे में पढ़ा था कि हम functions करेंगे, so we can have our own functions. You have to mute yourself, Arushi Gupta. Arushi Gupta, mute yourself.
चलो, so user creates this according to their own needs. So this is an example of function that we can create in our program. ठीक है, तो यहाँ अपने आप से कैसे इसको बनाते हैं कि ये क्या लिखा है ब्रैकेट में या कॉमा डाल के दो चीजें ये क्या लिखी हैं, इसमें क्या लिखा है, वो सब हम फंक्शंस में पढ़ेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं. ठीक है. Okay, so this is an example of C program, but before that I think we can go to this. Fine. So if I write a C program here, I write here, what do I have to write? Hash include stdio.h. ठीक है, ये मैं लिखूंगी. Then I have to write int main. और फिर अगर आपको कुछ comments लिखने हैं, then also that you can write. Okay. So after that, okay, first I will tell you one thing. यहाँ मैं इस फाइल को हटा देती हूँ. चलो तो ये मेरे पास में यहाँ I will be writing one program. ठीक है. So yesterday we had talked about that I had taken x is equal to 10 and y is equal to 20. These were the two integers. And then I had taken int z is equal to x plus y. I was just adding the values. And further I had printed the value of z. ठीक है, वो आपको already पता है. So now I have a scenario where I have to take input from the user. कि आप देखो पहले वाले सिनेरियो में क्या था, हमने यहाँ पर ऑलरेडी 10 वैल्यू x को दे रखी है एंड 20 वैल्यू y को दे रखी है ना. बट नाउ आई वांट कि जब भी यूजर यहाँ से अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करे, देन यूजर कैन गिव द वैल्यू. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्राम ओनली कि हर बार आपको 10 एंड 20 ही देनी पड़ेगी. ओके, यस. So for that, what I will be doing, I will just declare the variables x and y that these are of integer data type. Okay, ठीक है. I'm just declaring that this x and y I will be using in the program and that is of integer data type. Otherwise, we cannot move ahead. Why? Because each in my program, each and every अल्फाबेट ये जो आप सब ले रहे हो, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, तो इनका हमें बताना पड़ता है कि डेटा टाइप क्या है. ठीक है. ओके, सो इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट आई डू, आई राइट हियर प्रिंट एफ. मैं यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करना चाह रही हूँ. एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, सो आई एम आस्किंग यूजर टू एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स. अब आपको ये देखना है कि हम यूजर अब नाउ यूजर विल स्टॉप एंड एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, नाउ यू सी हाउ टू इनपुट द वैल्यू, हाउ टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर. अब आप इसको देखिए. अब इसके लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज करेंगे, SCAN, स्कैन एफ फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर अब मैं ब्रैकेट डालूंगी एंड कोट्स में मैं डालूंगी उस वैल्यू का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो वैल्यू जिस टाइप की वैल्यू मैं एंटर करवा रही हूँ. ठीक है, तो कल हमने कुछ डिस्कस किया था थोड़ा सा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में. ठीक है, जब आपका ये कैरी फॉरवर्ड होगा आपका सारा सिलेबस आगे, जैसे करेक्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स अलग होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए इस एग्जांपल को देखने के लिए तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर कल मैंने आपको बताया था कि इंटीजर, अगर आपके पास में कोई वेरिएबल होता है, कोई डेटा आप इंटीजर ले रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए हम %d यूज करते हैं. तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको याद है आपको कि printf में आपने लिखा था ब्रैकेट में द वैल्यू ऑफ z इज, और फिर हमने लिखा था %d, और लास्ट में हमने %d के बाद क्योंकि किसको सिग्निफाई कर रहा है d, और यहाँ मैंने फिर z दिया था और इसके ऊपर लिखा था z इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना. ठीक है, ये लिखा था मैंने. तो यहाँ हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया था. अब scanf में, नाउ इन दिस प्रोग्राम, इन scanf, in these double quotes, I will put a format specifier
डेटा टाइप की आपको वैल्यू एंटर करनी है। आप कौन सी वैल्यू एंटर कराना चाह रहे हो? इंटीजर वैल्यू। तो इसके अंदर मैं %d लगा दूंगी। वाई? बिकॉज हमने पढ़ा है कि इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है दैट इज %d। ओके, सो नाउ आफ्टर क्लोजिंग दीज कोट्स, अंडरस्टैंड, आफ्टर क्लोजिंग दीज कोट्स आई एम राइटिंग कॉमा डाल रही हूं मैं, और साथ में मैं यहाँ पर अब क्या दूंगी? किसकी वैल्यू को मुझे एंटर करना है? x की वैल्यू को, राइट? पहले आप यूजर से ऊपर क्या प्रिंट करें? एंटर द वैल्यू ऑफ x। यू वांट the value of the value that user will input to go in x, yes? तो यहाँ पर आप x लिखोगे। लेकिन printf एंड scanf में ये फर्क है कि जब आप scanf यहाँ पर लिखोगे तो x के आगे एक और सिंबल लगाओगे, वो है एंड साइन का, वो होता है एम्परसेंड साइन। ठीक है, ये कौन सा साइन है? ये कौन सा साइन है? आई एम राइटिंग इट हेयर, इट इज कॉल्ड एम्परसेंड, एम्परसेंड साइन। ठीक है, ये जो 7 के ऊपर स्पेशल सिंबल दे रखा है ना, एंड, एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड बोलना है, इसको अभी एंड नहीं बोलना, इसको हम बोलेंगे एम्परसेंड। ओके, सो बाय दिस सिनेरियो and after the end of the line I have to put a semicolon. Fine. So by this scenario, by using this function scanf, I will be able to enter the value of x, right? User will be taking user will be inputting some value and that value will be going in x. ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करते हो? दोबारा से आप लिखते हो, अब यूजर ने x की वैल्यू को एंटर कर दिया, सो नाउ यू विल अगेन now let me put one slash, backslash also। यहाँ जब यूजर इनपुट करेगा, so by backslash n, यहाँ अगर देखो हम printf में एक backslash n डालते हैं तो it will give you next line also, जैसे enter the value of x और फिर एक next line। So we'll see in the output, I'll again explain in the output how this backslash n works। Okay, so now in next printf what I'm doing, I'm writing enter the value of y। ठीक है, तो इसके एंड ऑफ द लाइन पे क्या आएगा? सेमीकोलन। अब कैसे एंटर होगा? ये तो सिर्फ आपने मैसेज लिखा है ना, बट हाउ एक्चुअली द वैल्यू विल बी इनपुट बाय द यूजर, देन अगेन वी विल बी यूजिंग scanf। तो scanf में मैंने ब्रैकेट में क्या किया? मैंने लिखना है डबल कोट्स, उसके अंदर क्या लिखना है? किस तरह की, what is the data type of the value that the user will enter, that is of integer data type, and for integer I'll be using %d, right? तो डबल कोट्स खत्म हुए, कॉमा लगा के मैंने क्या लिखना है? नाउ y में एंटर वैल्यू करेगा ना अब यूजर, तो I will be writing here %y। okay, so this is the rule that we have to follow। so at the end of the line I am writing this semicolon। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? नाउ आई हैव दिस इंट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड फाइनली जो हम क्या करते हैं? प्रिंट एफ करते हैं, और फिर प्रिंट एफ में मेरे पास में क्या है? द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज क्या? कल हमने जैसे किया था %d, राइट? दैट विल ऑल्सो बी एन इंटीजर, और कोट्स के बाद में क्या लिखते हैं? सिंपल z, राइट? जैसे हमने कल किया था। तो ये हमारा क्या है? जो जैसे ये वाला तो हमारा कल वाला ही पोर्शन है, जैसे ये इंट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड प्रिंट हमने उसका रिजल्ट किया, तो मुझे वैल्यू z की चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका लगा दिया है, राइट? एंड देन हमने यहाँ कॉमा डाल के z लिख दिया, राइट? और हमने अभी क्या सीखा है? हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यस, so you are not giving any value of x and y, right? But user will give whenever you are compiling and executing your program। Fine, तो वो कैसे करना है? That will be done by scanf, right? तो मैंने इसको new.c में सेव कर रखा है। Somebody had raised hand, I'll take your query later। So I'm writing here return 0 also। So I'm saving this program and I'm compiling it, so it gets compiled successfully, and then I am running this program. Now you can see, now see what happens. What was the program?
प्रोग्राम में था आपका ये वाला डेक्लेरेशन पार्ट, इंट एक्स एंड वाई, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। तो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर मैंने बैक स्लैश एन, ये होता है बैक स्लैश। चलो पहले हम बैक स्लैश के बारे में बात करते हैं। ये जो बैक स्लैश है, ये हमें कमेंट्स दे रही हूँ आप, सॉरी ये रहा आपका कमेंट्स। ये जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश किसके ऊपर है, ये आपका शिफ्ट के ऊपर, एंटर की के लेफ्ट साइड में बैक स्लैश एन, इट इज नॉट फॉरवर्ड स्लैश, इट इज बैक स्लैश एन। तो ऐसे ही हमारे पास में बैक स्लैश बी होता है, बैक स्लैश ए होता है, इनको हम एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं। हम इसको मे बी आप अपने लैब में करोगे इसको, अगर यहाँ पर डिस्कस करना हुआ यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल के साथ में कर लेंगे, ठीक है। बैक स्लैश ए, बैक स्लैश आर, तो ये हमारे पास में एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो इसको अगर हम प्रिंट एफ में लिखते हैं डबल कोट्स में, सो दीज थिंग्स हैव some particular specific meaning, rather than backslash n, rather than printing backslash n as it is or backslash b, it will print some, it is having some specific meaning. मतलब backslash n होता है new line के लिए, okay, it is for new line, so next line will be generated. Backslash b is for backspace, अगर आप ये कहीं पे लगाएंगे तो एक लेटर हट जाएगा, ये जो आपने as it is मैसेज लिखा है। Backslash a is for bell, backslash r is for carry forward, carriage return होता है। So we'll take one example later on when we are discussing about escape sequences, but for now you just understand as that this backslash n is for new line, right? तो जब मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया था ये न्यू लाइन वाला, तो मैंने क्या 6th लाइन में क्या प्रिंट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ x और बैकस्लैश n। तो यहाँ क्या आया देखो, एंटर द वैल्यू ऑफ x, और ये जो कर्सर है इट हैज नाउ गॉन टू द नेक्स्ट लाइन, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस बैकस्लैश n, राइट? Because of this backslash n, this cursor has now gone to the next line. So now it is halting for the user to give any input, right? क्योंकि 8th line में मैंने scanf लिखा है, so it is not going anywhere, it is not printing another line, it will wait for me to input something. So let us suppose I put 100 here, तो मैंने यहाँ 100 वैल्यू एंटर कर दी, 100 लिखा, साथ में एंटर प्रेस कर दिया, साथ के साथ क्या हुआ, नेक्स्ट जो मतलब ये जो 8th लाइन है उसके लिए आपने 100 प्रेस कर दिया। सो नेक्स्ट लाइन में एंटर द वैल्यू ऑफ y, राइट? नाउ कैन यू सी, एंटर द वैल्यू ऑफ y तो एज इट इज प्रिंट हुआ, बट मैंने बैकस्लैश n नहीं दिया था, इसलिए ये नेक्स्ट लाइन पे ये वाला कर्सर नहीं गया है। सो हेयर यू हैव टू एंटर द value of y, and it will halt for you to enter some value for y. So let us suppose I enter 250, okay, and again I have put enter. So now you can see कि यहाँ पर क्या आया है नेक्स्ट लाइन में, space the result of addition is 350, और यहाँ मैंने इधर 17th लाइन में देखो, रीड करो क्या लिखा था, कोट्स में स्पेस डाला था, the result of addition is %d, मतलब जो z की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए, z की वैल्यू ऊपर से कैलकुलेट होके आएगी, जो भी यूजर ने कुछ इनपुट किया था वो अपने आप ऐड हो गया, और यहाँ पर ये रिजल्ट 350 यहाँ पर आया है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 350 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेयर वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके। चलो, now few people have raised their hand. Yes, tell me. आरुषि जैन बोलो। हम जो एंड वाला सिंबल था उसका यूज क्या था? उसका यूज क्या है, आप here you can see that a user can enter the value in x. अगर हम सिर्फ x लिखेंगे तो नहीं होगा, तो x में नहीं आएगा। मुस्कान चौधरी, आरुषि जैन, mute yourself. Yes, Muskan, bolo. Ma'am, I just wanted to ask that why do we put the curved brackets after int में? ये वाला? Yes, ma'am. ये main एक function होता है, and you have to put this bracket here. Okay. Thank you. ठीक है, चलो। Okay, so I hope it is clear. ठीक है, तो इससे एक मिनट, इससे क्या होगा, you will be, अगर मैं आपको कुछ यहाँ पर मैं बोलूंगी एरिया ऑफ
area of square निकालिए. So I think you will be able to make that program. You will be taking one input from the user, that will be the side, okay, and then you can put some formula there, right, and then you can print the result. ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी आपके कुछ programs होंगे आपकी lab में, then you can do that. आर्यमान गुप्ता, yes, बोलिए. मैम एक बार वो जो स्लैश है इसको बोलते क्या है? इसको हम बैकस्लैश n बोलते हैं, इनको एस्केप सीक्वेंसेस बोलते हैं. मैम उसका एक एस्केप बार सीक्वेंसेस. ठीक है मैम, उसको डालने से मैम होता क्या है? बैकस्लैश n होता है, इट इज फॉर न्यू लाइन. we'll have this in another lecture. हम बैकस्लैश b भी करेंगे, बैकस्लैश r, ये सब इनका अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. जैसे बैकस्लैश n लगाने से आपके पास में न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी. बैकस्लैश t लगाने से टैब जितना स्पेस आ जाएगा, करके देखिएगा. यस, आरुषि गुप्ता, विपिन वडेरा, बोलिए. मैम ये आपने स्कैनर के अंदर जो %x और %y, मैम इसका क्या रोल होता है? मैंने आपको बताया तो है, इससे पहले भी बताया है कि यहाँ पर हम जो एम्परसेंट लगा रहे हैं, इट विल एक्चुअली टेक द वैल्यू एंड इट विल पुट इनटू द x वेरिएबल. ये जो हमने x लिखा है, जो भी यूजर एंटर करेगा, this ampersand, because of this ampersand only it will be sent to this x, and because of here user will enter the value whatever he will enter, it will be sent into y because of this ampersand. पॉइंटर्स में आप पढ़ोगे ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है. अभी कुछ ये बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को. विविन, लास्ट क्वेश्चन नाउ आई एम टेकिंग, देन आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. यस विविन. मैम रिटर्न स्टेटमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है? मैं रिटर्न का पहले बहुत बार बता चुकी हूँ, पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा. डू नॉट रिपीट एनीथिंग. बहुत बार पहले 2 लेक्चर्स में यही कुछ बोला मैंने. ओके, सो नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज अ example, this is an example of a C program where I am taking another kind of data type. जैसे हम integer लेते हैं, वैसे हम float भी ले सकते हैं. We will be discussing further data types के int, char, float, double, ये सब हमारी data types आएंगी. But for as this example has come, so we can also have a float as a data type. मतलब एक कोई आप वेरिएबल ले, तो ये r है ना, जैसे मैंने x लिया था वैसे यहाँ पर r ले लिया है. तो जैसे हमने इंटीजर लिया था, ऐसे एक फ्लोट होता है जो डेसिमल्स ले सकता है, राइट. सो इफ आई आस्क यू टू डेवलप अ प्रोग्राम for to find area of a circle, then उसमें decimals आपके enter होने चाहिए, right, because of the value of pi also, and your radius can also be in decimals. So you can write here printf, enter the radius, scanf, और उसके लिए float, because float value है तो %f होता है format specifier. We will be discussing this all these things in detail further जब हम data types पढ़ेंगे. अभी सिर्फ we are going through a structure of C program, ठीक है. और यहाँ पर एक एग्जांपल वैसे दे रखी है कि एक पूरा नीचे मेन के बाद देखो, मेन तो ये है और मेन के बाद में एक फंक्शन बनाया हुआ है. सो इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस फंक्शन यहाँ एरिया का, सो डजंट मैटर, विल डिस्कस. ओके, तो लाइफ साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम क्या रहता है. सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, वी हैव टू राइट अ सी प्रोग्राम एंड देन वी हैव टू सेव दैट फाइल with .c extension, जैसे कल भी हमने किया था, है ना. So actually whenever you are compiling and executing your program, your whole program goes through this process, okay, and this is very important process for you to understand. Fine. So what happens here, let's discuss. हमारे पास में यहाँ पर ये देखिए, ये ऑरेंज में जो है यहाँ, it is a C program. For example, I am saving my file with name simple. मैंने अपनी फाइल का नाम simple दिया है and I am saving it with .c extension. Fine. तो ये जो मैंने सेव किया है अपना प्रोग्राम, तो उसमें हमारे पास में सबसे पहले प्री प्रोसेसर काम करता है, राइट. प्री प्रोसेसर काम करता है. तो जो भी मैंने, अगर आपने अपनी नोटबुक पे लिखा होगा प्रोग्राम, तो हमने जो भी हमने हैश इंक्लूड stdio.h वगैरह किया, राइट. जैसे कल थोड़ा सा हैश डिफाइन पढ़ा था पाई की वैल्यू के लिए, तो ये सब हमारे पास में प्री प्रोसेसर्स होते हैं. एंड व्हेन योर प्रोग्राम गोज थ्रू प्री प्रोसेसर, देन एक्सपैंडेड सोर्स कोड इज फॉर्म्ड.
actually whenever you are writing a program, जो भी आपने program लिखा है, आपके पास में जो भी लिखा हुआ है, so what happens, that program is also called where has it gone, ये रहा. So if anybody enters in between na the class, then again it is a disturbance. So whatever program that you have written, that is also called a source code. उसको और क्या दूसरा नाम क्या है उसका, प्रोग्राम जो आप बनाते हैं, its name is source code. Okay, so when it goes through preprocessor, that source code gets transformed to expanded source code. तो जो आपकी .c वाली फाइल होती है वो .i में ट्रांसफॉर्म होती है. ये आपको पता नहीं चलता ना, इसमें आपके कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं लोड होती, ठीक है, कंपाइलर में. तो ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड फॉर्म होता है. उसके बाद आप सबसे पहले कंपाइल करते हो अपने प्रोग्राम को, एंड देन थ्रू दिस कंपाइलर व्हेन योर प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड, फर्स्टली इट फॉर्म्स द असेंबली कोड. ठीक है, तो असेंबली कोड में जो आपकी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो .s की फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, तो असेंबली कोड से जो अगर मेरे पास में असेंबली कोड आ गया, अब हमारा मोटिव क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कंप्यूटर जो होता है दैट इज एक्चुअली we only want our code to get transformed into machine language so that machine language will be understandable to computer and it will give you the result. ठीक है, तो जब ये assembly code बना है, अभी भी ये 0 and 1 का कोड नहीं बना है, right? So that 0 and 1 का code is called object code. So what happens now, we have to go through the assembler. Okay, so what happens when this assembly code goes through the assembler, now this assembly code gets transformed to the object code. ठीक है, तो ये object code जब form होता है, that is in the form of 0 and 1. इसके बाद में लिंकर के थ्रू बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज जो हैं ये सारी लिंक होती हैं, एंड फर्दर there is one executable code is formed that is called .exe file, जो executable code form होता है. ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो कंपाइल करते हैं. So this whole is the compilation process. Finally जो आप रन करते हो, the second जो आपका last step रहता है after compilation, that is executing the program or run the program. So that actually happens on this file simple.exe, right? So further this file is loaded whenever you press run or execute, press karte ho, then this file is loaded into the operating system, and further for execution it is loaded into the memory और फिर आपको रिजल्ट दिया जाता है. ठीक है, तो बैकएंड में ये सब काम हो रहा है. So we'll go through this process one by one. तो ये जो हमारे पास में ऑरेंज में दिए गए हैं, that is actually the file that is getting transformed. Okay, जैसे आपके पास में सबसे पहले .c की फॉर्मेट में प्रोग्राम था, then it gets transformed into .i, that is the expanded source code, then .s, that is assembly code, then .obj, that is the object code. So this will be in the form of 0 and 1, but that has to be now changed into executable code .exe, and then it will be further sent to the memory. ठीक है, for execution. और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो ग्रीन कलर में है. प्रोसेसर काम कर रहा है, प्री प्रोसेसर सॉरी, देन कंपाइलर, देन असेंबलर, देन लिंकर एंड देन लोडर. ठीक है, तो पहले हमारे पास में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा था, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर कैसे काम करता है, राइट? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम दैट वी हैड रिटन ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज #include stdio.h void main printf hello, right? So when it goes through the preprocessor, now you can see whatever will be the code of this stdio.h, that will be included in this whole code that you have written. Okay, so this preprocessor that will remove all the comments that you have written in the documentation or any other header file in the source code, and all those macros will be
replaced, and you will finally get a simple .i, means you will get an expanded source code. Okay, those who are raising your hand, I'll take your query later, let me finish first. Okay, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री प्रोसेसर का काम. अब नेक्स्ट जो काम है वो किस पे होगा, सिंपल डॉट आई फाइल पे, राइट, दैट इज द एक्सपैंडेड सोर्स कोड जो आपका फाइल ये वाली, इसके ऊपर अब काम होगा. कौन काम करेगा, नाउ इट्स द टर्न ऑफ कंपाइलर. सो दिस इज द expanded source code, and now this compiler will transform this code जो आपका ये high level language में है, it will transform this code into the assembly language. तो ये असेंबली लैंग्वेज पहले बनती होती थी, मतलब देखो सबसे पहले तो zeros and ones पे काम होता था whenever computer was developed, right, but later on assembly language was developed, but that was also very difficult and further compilers were developed. ठीक है, तो हम अभी भी हमारे compilers में यहाँ क्या होता है, it gets transformed into the assembly code, but यहाँ पर further this assembly code has again it has to be transformed, okay, because we have to reach the scenario of 0 and 1, that is the object file. ठीक है, तो assembly code मतलब जिसका .s extension रहता है, that file will be now going through the assembler, and now this assembler will convert this assembly code into the object code, and जो भी आपकी फाइल का नाम होगा, now its extension will be .obj. So obj file has to be formed later on, ठीक है, at the end. Now this obj file, this there can be other files also that have to be linked with the libraries. जैसे हमारे पास में एक तो हमारी अपनी फाइल है ही है, but there have to be some other object modules that have to be linked together with the library also, right? तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं और सारी फाइल्स को कुछ जैसे मेंटेन करते हैं. we form a single file by combining all these files. For example, आपके पास में जैसे printf का function है, now that for that stdio file has to be linked, right? So with the help of the library, so that will be done with the help of a linker, and all those files or some other functions are there that are predefined in your program. So only one file will be formed at the end, that is the exe file. तो जो भी आपने आपकी फाइल का पहले नाम रखा है उसका .exe extension form होगा, right? Then this exe file जो है, that will be loaded into the memory for the execution, right? So this loader, what is the work of loader? Loader will place these machine code मतलब जो आपका object code था, then it will place this machine code object dex in memory ready for execution, and after this you are able to see the result, right? So this whole process is the life cycle of a C program, and it is very important process, right? तो जब भी हम अगर मैं आपको एक इस प्रोग्राम में भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो ये तो हमारा पुराना प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ पर देखते हो, whenever you are let us suppose I am copying this program, I am making a new file, okay? So मैं इसको copy paste करके इसको मैं new file 123.c ये फाइल नाम दे रही हूँ, ठीक है? So whenever I am saving the program, हमारे पास में 4 steps थे, writing the program, then saving the program in .c with .c extension, then third था compilation, and then fourth था हमारा execution, right? So हमारे पास में if you can see where is the one dot, हाँ ये देखो, तो ये मेरे पास में 123.c जो मैंने अभी बनाया है ये प्रोग्राम, ये मेरा बन गया. Now there is no other file here that is of same name as 123. तो जब मैं इसको compile करती हूँ and run करती हूँ, now you can see whatever will be the result, but here you can see this another file is formed, right? It is actually formed by the compilation only. मैंने तो इकट्ठा कर दिया, अभी मुझे compilation only करना चाहिए था. Then again this file, this second file is generated, and if you see its properties, then it is .exe file.
So whenever you are running your program, you are executing your program, यहाँ जैसे आप run करते हो, that is done on the exe version of the file. ठीक है, ये आप करके देखिएगा. पहले सिर्फ एक ही फाइल फॉर्म होती है, आप तो अलग फोल्डर बना लेना. मैंने तो इसको डेस्कटॉप पे कर दिया है. Then you can find out that only one file is formed, but later on one exe, after compilation one exe file is also formed. ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर किसी को कुछ पूछना है, you can ask me or from the program. Otherwise we'll start with character set of C. Yes, वेदांत बोलो. मैम हम इंट मेन की जगह अगर वॉइड मेन लिखते तो वो कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. आई विल नॉट टेक रिपीटेटिव क्वेश्चंस, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया ये. आर्यमान गुप्ता, कुछ इसके बारे में रिलेटेड है, कुछ नया कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलो. जो बहुत बार पूछ चुकी हो बेटा वो बार बार मत पूछो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. अगर आप इंट मेन नहीं लगाना चाहते वॉइड मेन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. आर्यमान गुप्ता. मैम .exe कौन सी होती है वो बता दो. .exe फाइल, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आप इसको मैम फाइल तो आ गई, जैसे मैम अगर हाँ. लिखते हैं .docx तो वो डॉक्यूमेंट होगा वर्ड का, तो exe कौन सी बनी. अरे ये देखो ना, ये जो बनी है यहाँ पर आप देखो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखो .exe. ये .docs पे मत जाओ. आई एम टॉकिंग अबाउट द C प्रोग्राम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डॉक्यूमेंट. So this is the C program. You go to its properties. It is its file extension. देखो .c. ये मैंने आपको तब बताया है कि जब आप compile करते हैं, before compilation only one file is formed, but after compilation second file is also formed. That is exe file. और वो जो exe file form होती है उसको फिर हम execute करते हैं. ये सारा तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, compile करते हैं ना. ये सारा compilation process है सारा. जब एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, वो इस प्रोसेस में आते हैं. इस ये जो फाइल फॉर्म होती है ना, ये जो फाइल फॉर्म हुई है यहाँ पर, ये फाइल फॉर्म हुई है, ये रन करेगी. ये आपका मतलब मैम वो एप्लीकेशन फॉर्म में आ गई. हाँ. ठीक और है, किसी का कोई क्वेश्चन है? विविन वडेरा, यू हैव रेज्ड योर हैंड. आर्यमान गुप्ता, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज लोअर डाउन. नो मैम. ओके, ठीक है. सो इससे हम फिर आगे चलेंगे. So right now we have discussed structure of the C program. Now and again we have discussed second thing we have discussed the life cycle of a C program. ठीक है, तो इसके बाद में हमें अब देखना है that what is the character set of this C. ठीक है, तो हमारे पास में as I had told you earlier that English language is composed of so many alphabets, right? And some symbols also, जैसे question mark, exclamation, comma. तो ऐसे ही जब C की बात करते हैं, C programming language is also has some particular character set. तो इसमें हमारे पास में होते हैं escape sequences, जो अभी हम बात कर रहे थे. वो किसके लिए यूज होते हैं? अगर मुझे हॉरिजॉन्टल स्पेस देना है, वर्टिकल टैब देना है, ब्लैंक स्पेस देना है, न्यू लाइन देनी है, राइट? कोई देयर इज अ लिस्ट ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस दैट वी कैन गो थ्रू. फर्दर वी कैन यूज लेटर्स लाइक कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z. अभी जो हमने अभी तक प्रोग्राम किया है ना, जैसे इंट मेन लिखा, हैश इंक्लूड, ये सब हमने इंट x, इंट y मैंने लिया था जो है ना, तो उसमें भी मैंने स्मॉल लिए थे. बट ये वेरिएबल्स के नाम, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं x एंड y, तो हम उनको कैपिटल लेटर्स में ले सकते हैं. बट जो आपका हैश इंक्लूड रहेगा, इंट मेन, वो सब आपका स्मॉल में रहेगा. सो वी कैन यूज लेटर्स ऑल्सो इन अवर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Further, we can use all the decimal digits from 0 to 9. So this composes the character set of C, right? And further, we have some special characters also. Special characters कौन से हैं? They have some particular meaning in this C language. ऐसे नहीं है कि ऐसे ही उठा के इसमें रख दिए. No. Comma क्या होता है? जैसे हमने int x, y लिखा था, right? Dot has some particular meaning. Semicolon आपको पता है, आपने किया हुआ है. At the end of each line we use semicolon. Colon भी होता है. फिर ये कोटेशन मार्क्स, वर्टिकल बार, स्लैश है, बैक स्लैश है.
स्लैश अलग है और बैक स्लैश अलग है, जैसे हम एस्केप सीक्वेंसेस में बैक स्लैश यूज करते हैं, डॉलर साइन अलग है, अंडरस्कोर, क्वेश्चन मार्क, तो दे हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क is to ask question in English, but here question mark has some other meaning. It is also a character, it is also included in the character set of C, but in this particular language this symbol has some specific meaning according to C programming language, right? Then plus minus, ये आपको पता है, asterisk sign, ये देखो and वाला साइन जिसको हम ampersand बोलते हैं, जो आप हमने आज ही किया था, right? तो ये कैरेट साइन ये भी होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स में आता है, राइट? तो बाकी पैरेंथेसिस, राउंड पैरेंथेसिस हैं, स्क्वायर वाली हैं हमारे पास में, कर्ली ब्रेसेस हैं, ये सब इट हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग इन सी, ओके। So each character is assigned a unique numeric value and these values put together are called character codes. We'll talk about it later. कोलन, ओके, इट इज, इसके थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कर्ली ब्रेस जैसे हम यहाँ पर मेन के अंदर लगाते हैं, हैश जो होता है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कॉमा वेरिएबल सेपरेटर होता है, पैरेंथेसिस हम ज्यादातर फंक्शंस में यूज करते हैं, जैसे मेन में यूज किया आपने, प्रिंटफ में, सेमीकोलन you know it terminates the statement, and colon is useful for label. We will use all these things and we have already sometimes few of them we have already used in our program, ठीक है। next is keyword. keyword होता है, it is called a reserved word, right? reserved word मतलब you cannot use them for variable name, जैसे ये auto है, break, do, double, else, enum, extern, register, switch, static, sign, ये सब, so all these are keywords. ये सब क्या करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इंक्लूड है, जैसे हैश इंक्लूड, आप इंक्लूड यूज करते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ particular meaning in C programming language and we cannot use these keywords as variable name. इसका मतलब क्या कि जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था, मैं यहाँ int xy लिया था मैंने, तो xy की जगह मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, मैं यहाँ पर कंप्यूटर दे सकती हूँ, मैं यहाँ पर थापर दे सकती हूँ, राइट? इट इज आई जस्ट हैव टू राइट नेम, राइट? तो मैं थापर और दूसरा मैं यूनिव ले लेती हूँ, तो यहाँ मेरे को थापर लिखना पड़ेगा, आई कैन राइट एनी नेम, राइट? तो यहाँ पर हम वैल्यू समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में x और y में जाएगी, वो हमें हमारा एक सेट आइडिया बना हुआ है मैथ्स में पढ़ने के लिए, राइट? बट यहाँ हम क्या करते हैं, वी कैन टेक एनी वेरिएबल नेम, बट वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि ये जो हमारे पास में ये कीवर्ड्स दे रखे हैं इनको हम नहीं यूज कर सकते। जैसे मैं अपने प्रोग्राम में ये नहीं कर सकती, इंट और पहले वाला मैं इंक्लूड ले लेती हूँ, फिर सेकंड वाला ऐसे करते हैं हम एल्स ले लेते हैं, नो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले वाला मैं ऑटो ले लेती हूँ, सो नो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज आर, इफ इज ऑल्सो कीवर्ड, एल्स इज ऑल्सो कीवर्ड, इट इज नॉट रिटन, हाँ ये रहा एल्स, तो ऑटो, ऑल दीज आर कीवर्ड्स एंड दे हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग, सो दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस थिंग इज रॉन्ग। Because these are functions. हाँ, These specify a perfect function in the program. 1 minute, so I will stop recording now.